again. Okay. So now what we'll do is we will just copy the whole thing and see what has happened after the movement of water has occurred. So again, as you guys told me, guys, जो हमारे पास movement of water होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? It's going to be from A towards B, right? From a region of hypo to hypertonic medium. अच्छा, अब अगर हम लोग देखें, so let's paste this once again. तो अब हम लोगों ने क्या देखा? assuming कि मेरे पास ना कंपार्टमेंट ए से let's say the first three water molecules move towards compartment B, right? अच्छा, अब क्या हुआ? Now what happened was when these water molecules moved to compartment B, मेरे पास दोनों जगह का water potential equal हो गया. Again, what was the water potential again? It was a ratio between the solute and the solvent particles, right? तो अब मेरे पास ना once these water molecules had moved from A to B, मेरे पास water potential on both the side has become equal. अब क्या होगा? Now what's gonna happen is अब जितने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ए से बी की तरफ मूव करेंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बी से ए की तरफ मूव करेंगे. नाउ दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन डिफ्यूजन, राइट? देखो, वी कैन नॉट टेक अवे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, राइट? वी कैन नॉट टेक अवे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. एक इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होगा ही होगा, ठीक है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा. Now when you have two different solutions separated by a partially permeable membrane. When you have two different solutions separated by a partially permeable membrane, you call these two solutions as isotonic solutions, right? So what do you mean by the word isotonic? हम लोगों ने कहा पे isotonic is when two solutions separated by a partially permeable membrane have the same water potential. ठीक है? ये सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे होते हैं? ये हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. अब now another thing that I want you guys to see here, मेरे पास कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी आफ्टर ऑस्मोसिस हैज अकर्ड, दोनों का वाटर पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस है. अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट ए, लेट्स से भाई कंपार्टमेंट ए का वॉल्यूम 250 से 150 सीएम क्यूब हो गया, वो बी की तरफ मूव करे, बी का वॉल्यूम 250 से 350 सीएम क्यूब हो गया. इससे हमें क्या पता लगा कि भाई टू डिफरेंट सॉल्यूशंस कैन हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, राइट? बट देयर वाटर पोटेंशियल कैन बी द सेम. अब इस तरीके से देखो, अब यू नो व्हाई, अब द क्वेश्चन शुड, यू guys should ask me the question कि सर, आपने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने में you did not waste or you did not invest this much time, so what's the deal with osmosis? Why is osmosis so important? It is important, बच्चों. It's because every living cell that we have has a fluid on the inside called the cytoplasm. And every living cell or cell that we have has some sort of fluid on the outside as well. Have some sort of fluid on the outside as well, right? For example, if I'm talking about the blood cells, they are surrounded by the blood plasma. If I'm talking about the tissues, they are surrounded by the tissue fluid. If I'm talking about the cells of my mouth, they are surrounded by the saliva. अब ये जो बाहर वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? सेल के बाहर वाला फ्लूइड. बिटवीन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड द साइटोप्लाज्म हमारे पास ये क्या मौजूद है बीच के अंदर? एक पार्शियली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन.
So between the extracellular fluid and the cytoplasm, we have a partially permeable membrane. अब अगर what if the water potential of the fluid outside the cell it increases? The water molecules will start moving in, and this may cause an animal cell to burst, right? Similarly, if the water potential of the fluid outside the cell becomes low, the water molecules are going to leave the cell, causing the cell to shrink. In either case, the cell is going to die. In either case, the cell is going to die. Do we understand this? And this is something that I personally don't want to happen with my cells. All right, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा जी. नो, देखो अच्छा, आइसोटोनिक सोल्यूशन इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन इट, नहीं देखो वही वाली बात ना. अगर हाँ वॉल्यूम इक्वल होती ना और सॉल्यूट हमारे पास इक्वल होता तो वो आइसोटोनिक होता. ठीक है, राइट. देखो हम लोग अगेन ऐसा बेटे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी सेड कि भाई वाटर पोटेंशियल क्या होता है. वाटर पोटेंशियल इज द, let's say, ratio between solute and solvent. It has nothing to do with, let's say, equality. अब देखो जब भी हम लोग ऑस्मोस के बारे में बात कर रहे हैं हम एक सोल्यूशन के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं. हम तो दो सॉल्यूशंस दैट आर सेपरेट बाय पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन उनको कंपेयर कर रहे हैं ना. डू वी अंडरस्टैंड दिस? जब हम लोग हाइपर और हाइपो कर रहे थे तो जब भी हम लोग दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को वो कर रहे थे, तो ये चीज है. अच्छा, हसनैन बेटे, any type of disease which is caused by this, there are, अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है जैसे हम लोग कहते हैं अडीमा, या लेट्स से भाई लैक ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो ब्लड स्टार्ट्स लूजिंग वाटर, वो हमारे पास टिश्यू को सराउंड करना शुरू कर देता है. हमारा वो जो पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो फूल जाता है. या चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से कि भाई अ पेशेंट कम्स टू मी एट 3 AM एट नाइट, और मैं सो रहा था. मैंने क्या करा, मैंने उसको ना इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम द मेडिकेशन, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग द मेडिकेशन, मैंने उसके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया. उसका तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, रेड ब्लड सेल बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे. या फिर जो whatever medicine I had to inject in their system, मैंने उसकी बहुत कंसंट्रेटेड डोज दे दी. विल डाई, हम ना विल डाई. ठीक है, तो again the cells are going to shrink, right? As then, do we get this bacha? Ultimately we will. Okay, अच्छा जी. अब देखो, now the next thing that we have to look at is again the effect, right? So what we're going to talk about, so what we'll talk about now is the effect of different water potentials on animal cells and plant cells. ठीक है, हम लोग बात करते हैं. Effects of different water potentials on, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन से वाले सेल की. लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल्स. ठीक है जी. अच्छा अब देखो, अब नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, we're going to make three different solutions, right? तो लेट्स से भाई एक सोल्यूशन हम लोगों ने ये बना दिया. लेट्स कॉल इट सोल्यूशन ए. देन वी हैव सोल्यूशन बी, एंड देन we'll have solution C. ठीक है,
जो पहला सोल्यूशन है ना, अब इन तीनों के अंदर अगर मैंने क्या करा, मैंने एक एनिमल सेल डाला। अच्छा, कौन सा वाला एनिमल सेल डाला? लेट्स से मैंने रेड ब्लड सेल डाल दिया। इट कुड बी एनी एनिमल सेल, but since we are more familiar with the red blood cell, so I'm using that as an example. Sure, Amna, I'll end the class 5 minutes early so that you can ask. ठीक है, don't worry. अच्छा, अब इसको देखो। अब जो भाई पहला वाला solution था ना, that was isotonic to the cytoplasm of the red blood cell. This solution has the same water potential as the cytoplasm of the red blood cell. अब तुम लोग मुझे बताओ कि will there be any movement of water if the cytoplasm and the water potential and the water molecules on the outside have the same have the same water potential? Will there be any movement of water molecules? No. हाँ, वेरी गुड दिशा। दिशा ने बात पकड़ी। देखो भाई, मूवमेंट तो होगी ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी के हाउ आर यू गोइंग टू टेक अवे काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स? यू कैन नॉट। हाँ, लेकिन हो क्या रहा होगा कि भाई जितना वाटर मॉलिक्यूल इस एक्सटर्नल सॉल्यूशन से अंदर की तरफ जा रहा होगा, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी आ रहा है। The movement of water molecules or the water molecules going inside and then outside is going to be equal. All right. हाँ, अब हम लोगों ने क्या करा? अब हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने सोल्यूशन बी के अंदर ना एक कैसा वाला सोल्यूशन रखा? एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा। Let's say by this solution has or is a solution of what? Of distilled water. Now please remember, distilled water या फिर pure water has the highest water potential. अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई क्योंकि बाहर वाले सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, द वाटर मॉलिक्यूल्स नाउ स्टार्टेड टू मूव इन। ठीक है। अच्छा, मुझे बात ही बताओ, forgetting the red blood cell, you have a balloon, excuse me, you have a balloon, you start putting air inside of it. What's going to happen? The balloon is going to expand. ठीक है, ये balloon क्या हो जाएगा? ये balloon expand होगा। Why is the balloon expanding in the first place? A very weird looking balloon, I know, but why? The question is, the real question is, why is this balloon expanding? हाँ भाई। तो नहीं नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। The theory is absolutely correct. है। नहीं नहीं, ट्रिगर प्रेशर नहीं। देखो, मैं तो बलून की बात कर रहा हूँ। होता क्या है बच्चों, उसको गौर से देखिए। whatever air is going to go into the balloon, ठीक है, थोड़ा सा देखो। देखो एक चीज, one thing that I would always tell you is कि let's not go with the bookish definition, just try to understand कि हो क्या रहा है ना। जितना हमारे पास एयर अंदर आ रहा है ना, the molecules in the air, they are applying pressure on the walls of the balloon. अब क्योंकि क्योंकि only because the walls of the balloon are flimsy, they are elastic, they can stretch, balloon swell up हो रहा है। हाँ, although every body that we have, उसके ऊपर एक एयर प्रेशर भी लग रहा है ना, एक एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर नहीं, आई एम सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है ना। when the pressure inside the balloon becomes more than the atmospheric pressure, या फिर when the pressure inside the balloon would be more than or than the walls of the balloon can bear. देखो, अब let's say if you would ask me to pick up something that's 20 kilograms, I may be able to pick it up. But if you would ask me to pick up something that's 60 kilograms, I may not be. मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना। इसी तरीके से इसी तरीके से जब मेरे पास अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि बलून्स की वॉल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उसको बेयर नहीं कर पाएंगी,
what's going to happen? The balloon will burst. The very same thing happens. The very same thing happens with the animal cells. Initially, as the water molecules start moving in, the the animal cell keeps on swelling up. The animal cell, whenever put into a hypotonic solution, will swell up. Why is it swelling up in the first place? Because the water molecules are applying pressure on the cell membrane. ठीक है? Again, ये trigger pressure नहीं है. Now, if the water molecules would still move in, and these new water molecules would from the inside would apply pressure on the outside, what's going to happen to the animal cell? The animal cells will burst. So animal cells, whenever put into a hypotonic solution, they would swell up and then they would burst. Very good. ठीक है? अब similarly, अब अगर हम लोग यही वाला एनिमल सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखें, अब क्या होगा? लेट्स से दिस अ वेरी कंसिडर्ड सॉल्यूशन ऑफ रूह अफ़ज़ा, जिसका वाटर पोटेंशियल साइटोप्लाज्म से कम है. Opposite will happen. Very good. The water molecules from the cytoplasm will now start leaving the animal cell. अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक सेमी इन्फ्लेटेड बलून है. If you're going to let all the air out, what's going to happen? It's going to shrink. Flaccid नहीं होगा. हाँ, flaccid नहीं होगा. आता सुबह बात करते हैं. ठीक है, हम कहते हैं कि भाई the animal cells are going to shrink and become what? क्रीनेटेड. अच्छा, क्रीनेटेड क्या होता है इसको देखिएगा 2 मिनट के लिए. अच्छा, होता क्या है भाई, जब एनिमल सेल्स वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं ना, दे अक्वायर द स्पाइकी अपीयरेंस. देखो, अगर कभी तुम लोगों ने देखा हो, ये करना, इफ यू वांट, इट्स अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट टू डू एट होम. गेट योरसेल्फ अ बलून. यू नो द बलून दैट कम्स आउट ऑफ द पैकेट, उसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत स्मूथ सी होती है. दे वेरी स्मूथ. बट वंस यू इन्फ्लेट इट एंड लेट द एयर आउट, जब वो उसको डिफ्लेट करते हो ना, उसकी वॉल्स के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं. अब एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, when you when the animal cells lose water ना, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लिमजी स्ट्रक्चर, तो फोल्ड करने लगता है. अंडर द माइक्रोस्कोप इट लुक्स एज इफ द एनिमल सेल हैज अ स्पाइकी अपीयरेंस. दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल एज क्रीनेशन. ऑलराइट. So animal cells become crenated because they undergo crenation. What is crenation? Crenation is the spiky appearance of what? Of animal cells. Cup as they lose water to a कैसा medium? To a hypertonic medium. इतनी सी बात. Do we all understand this? अच्छा, फ्लैसिड जो होता है ना, वो हम लोग टिश्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्लांट सेल्स भी फ्लैसिड नहीं होते. प्लांट कोई भी टिश्यू, जब वो व्हेन इट लूजेस स्ट्रेंथ, वी से कि भाई वो फ्लैसिड हो गया. ऑलराइट. पीपल हु आर पैरालाइज्ड भी हम कहते हैं उनके, फॉर एग्जांपल द पर्सन's हैंड इज पैरालाइज्ड, इट कैन नॉट मूव, वो फ्लैसिड हो गया. तो फ्लैसिड बेसिकली टिश्यूज के लिए होता है. I'll explain the difference between wilting, flaccid and plasmolysis. Don't worry. अच्छा, so भाई these were the effects of different water potential on what? On animal cells. अब हम लोग क्या बात करते हैं? We're going to talk about the very same differences or different water potentials on what? On plant cells. अच्छा भाई, how are the plant cells different from the animal cells? Is that the plant cells have an additional layer of protection that we call as a cell wall. ठीक है. अच्छा, अब
what we'll do is, again, we'll draw the very good cell wall, made up of cellulose. Yes. What we'll do is we'll draw the very same three solutions. भाई एक solution है जो कि हमारे पास आइसोटोनिक है, एक solution है हमारे पास जो कि आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, और एक को हम लोग हाइपरटोनिक कर देंगे. ठीक है, so writing the name of the solution first. So this solution is isotonic. This solution is made of distilled water hypotonic. और ये वाला जो है ये हाइपरटोनिक है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, अब बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग, मुझे एक बात ये बताएं. लेट्स से अब्दुल राफी एंड आई, चलो, वी आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, ऑफ अ डोर. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज डोर. ठीक है, सो दिस इज मी. ठीक है, दिस इज राफी, राफी. ऑलराइट. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, I am pushing this door and I'm applying a force of 5 newtons. Abdul Rafi is pushing the door in the opposite direction, so he's applying a force of minus 5 newton. Will the door move? No. ठीक है, क्यों भाई? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है ना. ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो आ रही है वो जीरो आ रही है. ठीक है, फिजिक्स 101. आई एम सो हैप्पी यू गाइस नो फिजिक्स. अच्छा, लेकिन what if this door was not made up of wood, instead if it was made up of paper? अब क्या होता है? अगर एक दरवाजा है पेपर से बना हुआ, एक थर्मोकॉल से बना हुआ, द डोर विल टियर, दरवाजा फट जाता. ठीक है, राइट. मैं यहाँ गिरा हुआ होता, काफी यहाँ गिरा हुआ होता. ठीक है. अच्छा, खैर, अब देखो, इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से व्हाट हैपेंस इज, एनिमल सेल्स जो है ना, उनके पास कोई एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, या जो वट एवर द लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट दे हैव, द सेल मेम्ब्रेन इट्स वीक. तो अंदर से अगर थोड़ा सा प्रेशर आएगा भाई, देयर इज अ चांस कि भाई, सी, देयर इज अ चांस कि भाई दिस सेल मेम्ब्रेन में बर्स्ट में टीयर, द वेरी सेम एज अ पेपर डोर. लेकिन अब हमारे पास एक प्लांट सेल है ना, उसके पास एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है विच इज स्ट्रोंगर, विच कैन बेयर pressure being applied onto it, right? Like a wooden door. वो टूटेगा नहीं, वो फटेगा नहीं. ठीक है. हाँ, आप सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, रेगुलर होंगे लेकिन इरेगुलर नहीं होंगे. है, अब इसको यहाँ तक, अब इसको यहाँ तक. अब मैंने क्या करा, इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन I put in a plant cell, so this is the cell wall. The one in the blue is a cell membrane. Please note the cell membrane is a bit away from the cell wall. और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ गया. अगेन आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो जितना साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ रहा होगा, उतना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखूंगा, देखो प्लांट सेल वॉल थोड़ी इलास्टिक होती हैं, they can stretch a bit but to a particular extent. So like the animal cells, the plant cells will also swell up, right? और उनकी जो एजेस है ना वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी. अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन थी जो पहले थोड़ी दूर थी, अब वो बिल्कुल सेल वॉल के ऊपर चिपकी हुई होगी. इट्स गोइंग टू स्टिक ऑनटू द सेल वॉल, and obviously the large central vacuole is going to swell up as well. Now, why is this happening? Why is this happening? It's because as the water molecules were moving in, the water molecules from the inside were applying a pressure onto the outside, right? This, अच्छा, अब एक और चीज, ये जो बाहर से अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, won't they be applying some sort of pressure? Yes, they would be. When the pressure applied by the water molecules from the inside becomes equal
to the water molecules, or the pressure applied by the water molecules trying to get in from the outside, ये वही +5 और -5 न्यूटन वाला चीज हो जाता है. No more water molecules are able to enter. It will. और वो क्या करेगा? वो और वाटर मॉलिक्यूल्स को आने से रोक देगा. ऑलराइट, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ. खैर, हम लोग कहते हैं कि भाई इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द प्लांट सेल्स स्वेल अप एंड व्हाट डू दे बिकम टर्जिड. ठीक है. So this gives us something to ponder upon, and that's a definition for what? Turgor pressure. अब पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको समझते हैं. What is Turgor pressure? It's a pressure applied by what? By water molecules. कहाँ से? From the inside. ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं. क्यों? क्यों? टू प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ वाटर. ठीक है. कि अब देखो हो क्या रहा है बच्चों. अब अंदर ग्रेजुअली, एज यू गाइस सेड, सर इतना प्रेशर हो जाएगा कि दैट प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटसाइड. अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अंदर वाला प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अंदर थोड़ी आ पाएगा. दिस इज व्हाट ट्रिगर प्रेशर बेसिकली. अब बात समझ में आई मेरे बच्चों? अच्छा देखो 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 हसन. इनिशियली मेरे पास लेट्स से ये काम चलता है ना, मैं सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बना रहा हूँ. लेट्स सेल वॉल ओनली. इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होंगे बाहर से, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है. अब अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भरना शुरू हुए. They started applying pressure on both the cell membrane and cell wall that caused the plant cell to swell up. Are you following me till here, मेरे बच्चा? Right. Ultimately, the pressure on the inside, the pressure applied by the water molecules on the inside will become equal to the pressure of water molecules trying to get in from the outside. Now, when the pressure right here on the outside, or the water molecules on the outside, and the pressure of the water molecules applied on the inside, when both of this will be equal, will any more water molecule be able to get in? That's what turgor pressure is. ठीक है. अच्छा, अगेन, टर्गर प्रेशर कौन सा वाला प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जो अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं. अच्छा, वो क्यों लगा रहे हैं? ताकि भाई और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाए. ठीक है जी. So we'll stop here today. In the next class, we'll look at the effect of, hopefully on Wednesday, the effect of a hypertonic solution of plant cells, and we'll inshallah get done with osmosis.